ملتان میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سرکاری ریٹ میں کمی جبکہ مارکیٹ ریٹ میں اضافہ ہو گیا۔ دکانداروں نے اپنے ریٹس لگا لیے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، ملتان میں ناجائز منافع اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے۔ ادرک کا سرکاری ریٹ 30 روپے کمی کے بعد 460 روپے مقرر ہے۔ ملتان میں ناجائز منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف۔ ادرک کا سرکاری ریٹ 30 روپے کمی کے بعد 460 روپے مقرر، لیکن مارکیٹ میں 600 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لہسن کا سرکاری ریٹ 16 روپے کمی کے بعد 534 روپے مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 340، پیاز 220 اور ٹماٹر 120 روپے میں دستیاب، جبکہ ہری مرچ کا سرکاری ریٹ 134، پیاز 150 اور ٹماٹر 88 روپے مقرر ہے۔ ٹینڈے 510، مٹر 120 اور آلو 80 روپے میں دستیاب۔ بھنڈی کا سرکاری ریٹ 308 روپے، مٹر 52 اور آلو کا 42 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ مختلف اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے کے درمیان فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 800، اسٹرابری 390 اور انار 500 روپے میں فروخت۔ پپیتا 300، امرود اور خربوزہ 200 سے 250 روپے کلو۔ کیلے 160 کی بجائے 240 روپے میں درجن دستیاب۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھل سستے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین زین کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا۔ دوسری طرف شہر میں قائم ماڈل بازاروں میں درجنوں اشیاء سرکاری ریٹ سے بھی کم پر فروخت ہو رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہاولپور میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا۔ دوسری طرف شہر میں قائم ماڈل بازاروں میں درجنوں اشیاء سرکاری ریٹ سے بھی کم پر فروخت ہو رہی ہیں۔ بہاولپور میں سرکاری نرخ نامہ نظر انداز، عام مارکیٹ میں اشیاء خور و نوش مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ماڈل بازار میں اشیاء خور و نوش سرکاری ریٹ سے بھی کم فروخت ہو رہی ہیں۔ جی لینے کے لیے پیاز وغیرہ لیے، سیب وغیرہ لیے، تو یعنی کہ اچھا ہے، وہ سے ملا ہے۔ باہر سے کافی کم ہے یہاں تقریباً۔ کتنا کم؟ تقریباً 20% کم ہے۔ جیسے کہ چیز باہر 200 کی ہے، یہاں 180 کی مل جاتی ہے۔ اب پیاز باہر 180 روپے پرچیز کیا تو یہاں ہم نے لیا ہے 155 روپے، 145 روپے لیا، یعنی کہ یہاں سے کافی کم ہے۔ ماڈل بازار انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بازار میں درجنوں اشیاء سرکاری ریٹ لسٹ سے بھی کم پر فروخت ہو رہی ہے۔ بازار میں پیاز، ادرک، لہسن، پھل اور کریانہ کی اشیاء بھی سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو ہم بروقت شکایت سننے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ یہاں ہم کوالٹی کا خاص خیال رکھتے ہیں، تو ہم عام مارکیٹ سے بھی ہماری مطلب کہ 5 روپے سے 10 روپے کم ہوتی ہے۔ یہ سارا سال چلتی ہیں۔ جو رمضان شریف کے جو فیئر پرائز شاپ لگی ہیں وہ صرف 1 مہینے کے لیے لگی ہیں، لیکن یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل پورا تھرو اور پورا ایئر ہماری ڈسکاؤنٹ ہمارے دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری صفائی، ہمارا کمپلین سیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی کمپلین سیل ہے ہمارا۔ اب کوئی بھی اگر کسٹمر کو شکایت ہوتی ہے تو موقع کے اوپر ازالہ کیا جائے۔ ماڈل بازار انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بازار میں معیاری اشیاء خور و نوش سستے داموں پر دستیاب ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ ملتان ضلعی انتظامیہ شہری کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ رمضان بازار میں آئے شہری پریشانی کا شکار۔ شہری کہتے ہیں کہ رمضان بازار میں سرکاری سٹال نہ ہونے کے برابر ہیں، پرائیویٹ سٹال پر اشیاء خور و نوش مہنگی ملتی ہیں۔ ملتان ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ رمضان بازار میں سرکاری سٹال کی تعداد کم ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اتنی دور سے سستی اشیاء خریدنے آئے ہیں مگر یہاں سرکاری سٹال کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہر میں ایک ہی رمضان بازار بنایا گیا ہے مگر عوام کو اس میں بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔ اتنا کوئی فرق نہیں ہے کہ 10-15 روپے کا ہے پڑا، اور یہ ایک ہی سٹال ہے بڑا سرکاری جو بنایا ہوا انہوں نے۔ اور دوسرا یہ جو ہے بڑا لائنیں تو ہیں لمبی، اتنی ساری مشکلات تو ہوتی ہے۔ روزے سے آتے ہیں ہم، مطلب ہے کہ آ کے زیادہ سٹال ہونے چاہیے، 1-2 تو کم از کم ہونے چاہیے نا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری سٹال پر سارا دن لائن میں لگنے کے بعد آٹا اور سبزی ملتی ہے، جبکہ سٹال پر 1 پاؤ سے زیادہ پیاز نہیں مل رہی۔ رمضان بازار آنے کا کیا فائدہ جب 1 پاؤ چیز لے کر جانی ہے۔ لائن لگی ہوئی آٹے کی 4-4، 5-5، 6-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ روزدار مائیں ہیں، بچے ہیں، روزے میں بڑا تنگ ہوتے ہیں جی۔ وہ شناختی کارڈ لگا نہیں بھی لگا، ملتا نہیں بھی ملتا۔ نزدیک سے آیا ہوں مگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو فیئر پرائس شاپ بنائی گئی ہے اس پہ جناب کوالٹی تو صحیح ہے مگر مقدار بہت کم دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کو جناب کم از کم 1 ہفتے کے لیے تو جناب یہ ریلیف ملے کہ وہ دوبارہ نہ آنا پڑے اسے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے رمضان بازار میں ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔
खानेवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के जरिए सस्ते आटे की फराहमी का आगाज 10 किलो का थैला 650 रुपए में फराहम करने का सिलसिला शुरू हो गया। खानेवाल के शहरियों की सुनी गई। यूटिलिटी स्टोर मोबाइल वैन के जरिए रिहायशी आबादियों में करीब सस्ता आटा मिलेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 किलो का थैला 650 रुपए में फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। शहरी खुश। ये सही हो रहा है, 650 रुपए दे रहे हैं। हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, ये जल्दी मिल जाता है, हमें सस्ता मिल रहा है, बेहतर है हमारे लिए। यूटिलिटी स्टोर के एरिया मैनेजर राव ज़ियाउल हक का कहना था कि खानेवाल में रोजाना 20,000 थैले फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का जो 12.5 अरब का पैकेज मिला है, उसके मुताबिक हमारे रेगुलर स्टोर तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में 4 हमारी मोबाइल टीमें जो हैं, मोबाइल यूटिलिटी स्टोर यूनिट भी काम कर रहे हैं, जैसे खानेवाल, जहानिया, मियाँ चनू और कबीरवाला। खानेवाल में डेली इस गाड़ी के ऊपर 200 से 300 बैग आते हैं। रेगुलर स्टोरों पे 2,500 बैग खानेवाल सिटी के अंदर डेली हमारी कंजम्पशन है। यूटिलिटी स्टोर के अफसरान के मुताबिक सस्ते आटे की फराहमी चांद रात तक बिला तातुल जारी रहेगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। रहीम यार खान ज़िले इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हो गई। शहरियों की सहूलत के लिए रमजान बाजार में तमाम अशिया खुरोनोश 25% डिस्काउंट पर मौजूद हैं। रहीम यार खान में जिले इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए मुतहर्रिक। रमजान बाजार में तमाम अशिया खुरोनोश 25% डिस्काउंट पर फराहम की गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजार से खरीदारी करती है। इंतजामिया का कहना था कि रमजान बाजार में पार्किंग से लेकर बैठने तक की जगह के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। ओपन मार्केट में हर चीज महंगी मिलती है। रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश खसूसी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। महंगाई के इस दौर में रमजान बाजार शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। रमज़ान बाज़ार हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इंस्टॉल किया गया, लेकिन मरियम साहिबा की खसूसी तवज्जो की वजह से इस दफ़ा पार्किंग का अलहदा इंतज़ाम किया गया। शामियाने अच्छे लगाए गए, जो शॉपिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम है, पंखे लगे हुए हैं। शॉपिंग करने के बाद अगर उनके साथी साथ हैं तो अलहदा सोफ़ों का इंतज़ाम किया गया है। अच्छी क्वालिटी में खुर्दोनोश की तमाम अशियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया शहर में मजीद 3 रमजान बाजार और कायम करे ताकि शहरी हुकूमत की जारी करदा सब्सिडी से यकीनी तौर पर मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन ने बिहाड़ी का खुसूसी दौरा किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की फराहमी का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने बिहाड़ी का खुसूसी दौरा किया। इनका कहना था कि आवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख में पहली मरतबा 12.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। तो मुझे तो रात पैगाम आया था कि आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा मैं गाँव में। उन्होंने कहा कल आते हुए इस्लामाबाद कोई यूटिलिटी स्टोर चेक करें और वहाँ देखें कि हमारा प्रोग्राम जो सब्सिडीज के मुताबिक चल रहा है और आवाम को कोई शिकायत तो नहीं है और स्टोर्स की क्या पोजीशन है। तो मैं उस हुक्म पे उनको, आपको भी पता होगा, आपको भी रात लेट इत्तला मिली होगी, तो अभी मैं गांव से निकला हूँ और फिर मैंने कहा बिहाड़ी से मेरे क्योंकि जाना है मैंने इस्लामाबाद, तो अभी मैं हसन रजा साहब के पास जाऊँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा इस्लामाबाद। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए 1500 आटा सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें से 1200 मोबाइल सेल पॉइंट हैं। हुकूमत की जानिब से स्पेशल ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है जिससे शहरी आगाही ले सकते हैं। इस मौका पर जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स मुल्तान और रीजनल मैनेजर जमशेद खान भी इनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। मुल्तान के रमजान बाजार में खरीदारों का रश, शहरियों के बैठने के लिए खुसूसी इंतजाम। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश की कीमतें आम रेट मार्केट की निस्बत कम है, अलबत्ता खरीदारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मुल्तान के वाहिद रमजान बाजार में शहरियों का रश लग गया। रमजान बाजार में शहरियों के बैठने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तादाद ज्यादा होने के बाइस कई लोग लाइनों में भी खड़े हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश की कीमतें आम मार्केट की निस्बत कम हैं, अलबत्ता खरीदारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। रमजान बाजार में मोबाइल स्टोर भी कायम किया गया है, जहाँ पर सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लोगों की कतारें लगी हैं। बारी न आने पर कई शहरी आटा न मिलने की शिकायत करते दिखाई दिए। गरीब आवाम के लिए इतनी सहूलत करना चाहिए। तो देखो कितनी आवाम कितनी परेशान हो रही है, रोजे से सुबह के आए हुए खड़े हुए, लेकिन आटे का कोई इमदाद नहीं है कि भाई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कोई सहूलत करनी चाहिए। रमजान बाजार में सब्जियां, फल, मसाला जात और दीगर अशिया आम मार्केट की निस्बत सस्ती हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान का अहम BCG रोड हुकूमती अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार। राहगीर और ताजिर मुश्किलात से दो चार हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए।
मुल्तान का अहम BCG रोड हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। रोड से गुजरने वालों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से ये रोड कई हादसात का सबब और माशी कातिल बन चुका है। ये सीवरेज के नाम पर डाला गया था तकरीबन 3-3.5 साल पहले, ठीक है। ये उसके बाद ये टूट फूट का शिकार है। एम्बुलेंसेज है, आपको दिखा सकते हैं आपका कैमरामैन। आधे से ज्यादा लोग जो हैं ताजर हजरात चौक BC छोड़कर चले गए। कारोबार तबाह हो गया है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। उसके बाद ये नज़ला, जुकाम, खांसी है। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड की हालत जार के बायस हादसात का होना मामूल बन चुका है। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कारोबार तो सर बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहा, ठीक है ना। बच्चों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, कारोबार बिल्कुल है नहीं। हम इस रोड की वजह से बहुत परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी अपील करते हैं, लिहाजा इस रोड की तरफ देखा जाए। बहुत ज़्यादा हम मुतासिर होए पड़े हैं। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से रोड की जल्द तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में महकमे ज़राअत इंतजामिया की नाअहली या गफलत, ऑफिस के अहाते से लाखों मालियत की कीमती दरख्त चोरी, 20 से जायद सफेदे और 2 पीकर चोरी होने का इंकशाफ है। जलालपुर पीरवाला में शजरकारी की बजाय दरख्तों को काटा जाने लगा। महकमा ज़राअत के ऑफिस से लाखों मालियत के कीमती दरख्त नामालूम चोर चोरी करके ले गए, जबकि इंतजामिया को कानों कान तक खबर न हुई। दरख्तों का चोरी होना ऑफिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। रोही टीम ने दरख्तों की चोरी बारे आगाह किया तो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि दरख्तों की चोरी बारे तहकीक की जाएगी। आपके बताने पे मुझे इस चीज़ का पता चला। इससे पहले मेरे इल्म नहीं थी ये बात कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। और ये जो है ये 2 दफ्तर इन दरख्तों के सामने हैं, एजुकेशन का भी है और एग्रीकल्चर का भी है। तो मैं अब इस बारे में उनसे भी रब्ता करके साथ वाले ऑफिस से और अपने अमले से भी पूछ के फिर हक़ाइक़ कुछ मालूम करके फिर आपके सामने रखें। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से सरकारी दरख्तों की चोरी बारे साफ शफाफ तहकीक करके मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। आपको टीबी से बचाव के आलमी दिन के हवाले से अपडेट करें। मुल्तान में टीबी से बचाव के आलमी दिन पर आगाही वाक, शोबा अमराज सीना प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं गुलाम मुर्तजा और दीगर की शिरकत। डॉक्टर्स का कहना था कि टीबी काबिल इलाज है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में इसे एक संगीन बीमारी समझा जाता है। पाकिस्तान में टीबी से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। टीबी को पाकिस्तान में तिब्दिक के नाम से भी जाना जाता है। 24 मार्च 1982 को रॉबर्ट कोक नामी एक साइंटिस्ट ने टीबी के जरासीम माइक्रोबैक्टीरियम को दरियाफ्त किया। पाकिस्तान में हर 10 किलोमीटर के रेडियस में टीबी की तशखीस की जाती है। मुतासरा शख्स के छींकने से दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। हम सब जानते हैं टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है और ये खांसने से, छींकने से एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया में टीबी के लिहाज से 5वें नंबर पे आता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है हमारे मुल्क में टीबी का बर्डन बहुत ज्यादा है। तिब्दिक के आलमी दिन के मौके पर MDA चौक पर सेहत फाउंडेशन की जानिब से आगाही वॉक की गई। डॉक्टर्स का कहना था कि 3 हफ्तों तक मुसलसल बुखार, खांसी और सीने का इन्फेक्शन तिब्दिक की अलामत है। हुकूमत की जानिब से टीबी के मरीजों का फ्री इलाज भी किया जाता है। अगर मैं टीबी की अलामात की बात करूं तो उसमें 3 हफ्ते से अगर आपको बुखार, खांसी है, भूख नहीं लग रही, बलगम में खून आ रहा है और उसकी कोई और रीजन सामने नहीं है तो हमें टीबी को सोचना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया भर में 16 लाख अफराद तिब्दिक से जांबाक हो चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पाम संडे की तकरीबात सजाए गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में मुख्तलिफ इबादत में मसरूफ रहे। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शहर औलिया में पाम संडे की तकरीबात का इनकाद किया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था कि यसु मसीह के नजूल से कबल भी ऐसी तकरीबात का एहतमाम किया जाता था। यसु मसीह के आने की खुशी में लोग खजूरों की डालियां चरागों पर लगाते हैं और अपने कपड़े इनके इस्तकबाल के लिए बिछाते हैं। पाम संडे हमारा जब खुदाम यसु मसीह मसलूब होने को था तो उसके आने इस आयाम से पहले ना खुदाम यसु मसीह का इस्तकबाल किया गया था। इसलिए जब यसु मसीह आते हैं तो फिर लोग अपने कपड़े वगैरह बिछाते हैं और कुछ लोग खजूर की डालियां उसके साथ मतलब इस्तकबाल करते हैं खुदा का, इसलिए हम इस चीज़ को मनाते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था कि ज़माना कदीम में कपड़ों की बहुत अहमियत थी। चाहने वालों ने कपड़े ज़मीन पर बिछाकर यसु मसीह का इस्तकबाल किया था।
खजूरों की डालियां खुशहाली और सलामती की अलामत हैं। उस दौर में लिबास बहुत कीमती होता था और लोगों ने खुदा यसु मसीह के रास्ते में अपने कीमती कपड़े बिछाए और खजूर को डालियां इस्तेमाल की, क्योंकि ये अलामत है सरसब्ज की, शादाबी की अलामत है। और हमारा खुदा यसु मसीह जो इस दुनिया में तशरीफ लेके आए तो वो सरसब्ज की अलामत थी। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके का इन्हिसार मोटरसाइकिल पर है। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमत से तंग शहरी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स का रुख कर लिया। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके का इन्हिसार मोटरसाइकिल पर है। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमत से तंग शहरियों ने इलेक्ट्रिक बाइक्स का रुख कर लिया। मुल्तान में लाहौर से आई रमजा इलेक्ट्रिक बाइक्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। तकरीब में साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इसको इकोनॉमिकली प्राइस में और कंपेटिटिवली प्राइस में हमने इसको विद फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स एंड फंक्शन फीचर्स इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये मुल्तान में एक संग मील है और लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि पेट्रोल जिस तरह दिन ब दिन रेट चढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक का जो है मोटर बाइक ये निहायत इकोनॉमिकल है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स किसी नेमत से कम नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के बाद इस महंगे पेट्रोल से भी जान छूट जाएगी। जैसे ही महंगाई का दौर आ रहा है पेट्रोल का, तो उसमें आवाम के लिए ये रिलीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में ये रमज़ा बाइक जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे घर में होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बेहतरीन है। फिर इसके मुझे काफ़ी अच्छे फीचर्स लगे हैं। एक तो इसमें एंटी थेफ्ट लॉक वगैरह भी है और दूसरा इसके अलावा जो है ना इसमें सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं और पेट्रोल से जान छूट जाती है। स्टूडेंट्स पेट्रोल डलवा थके होते हैं और उसके अलावा जो आरामदेह भी बहुत है, कंफर्टेबल भी है। मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत रमजा इलेक्ट्रिक बाइक्स को देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मुगीर शाह के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार पाम संडे। बहावलपुर के गिरजा घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। तकरीबात खत्म होने के बाद मसीही फैमिलीज ने पार्क का रुख कर लिया। मसीही बिरादरी का मजहबी त्यौहार पाम संडे आज मनाया गया। बहावलपुर के गिरजा घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। खवातीन और बच्चों ने पाम संडे खुशियों के साथ मनाया। मसीही बिरादरी ने पाम संडे के मकसद के बारे आगाह किया। पाम संडे का हमने वो इबादत की है, उसमें हमने बहुत सारी बरकत पाई और हम अपने ईमान और अकीदे के साथ हम चर्च आए हैं और बहुत सारी खुदावंद के हजूरी में अपनी दुआएं मांगी है। और मसीही फैमिलीज का कहना था कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, छुट्टी का दिन है, तफरीह का मौका है, तो पार्क्स में घूमने फिरने आए हैं। घर पर भी अच्छे खाने पकाए जाएंगे। जी खाने के लिए अभी जाएंगे, ला के बहुत कुछ रखा हुआ है। कस्टर्ड वगैरह बनाएंगे, बिरयानी होगी, कोई कोरमा होगा, कोई मेहमान आएंगे, सबके साथ बैठ के चाय पियेंगे, तो खुशियां मनाएंगे हम। मसीही फैमिलीज का कहना था कि पाम संडे को वो इबादत के साथ अपनों में मोहब्बत और खुशियां तकसीम करते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर कोटअदू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी का प्रेस क्लब का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सहाफियों से मुलाकात की और पौधा भी लगाया। उन्होंने मेंबरान से मसाइल बारे भी गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर कोटअदू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने प्रेस क्लब का दौरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सहाफत मुआशरे की आंख और कान का किरदार अदा करती है। सहाफियों का मस्बत ताउन मुआशरे को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। मीडिया जैसे कि आईज एंड ईयर होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और मीडिया का एक जैसे कहते हैं कि चोली दामन का साथ होता है। ये हमारा एक क्लोज लाइजान रहता है हमारी तमाम जो जर्नलिस्ट हैं इनके साथ। इसी सिलसिले में आज प्रेस क्लब का विजिट किया गया है। यहाँ पे आज प्लांटेशन एक्टिविटी भी की गई है और डिटेल के साथ हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोटअदू से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं और जो हमारे मसले मसाइल हैं उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई है। डिप्टी कमिश्नर ने नए आने वाले प्रोजेक्ट और ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे आगाह किया। उन्होंने विजिटर बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। कैमरा टीम के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटअदू। शहर औलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। बहार की आमद के साथ ही तबूबिये के दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल गए। तबूबिये के दरख्तों पर खिले गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। शहर औलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। तबूबिया के दरख्तों पर मौसम बहार में पत्ते झड़ने के बाद फूल खिल गए।
तबूबिया के दरख्तों पर खिले गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज का कहना था कि तबूबिया की खास बात यह है कि इस पर फूल तमाम पत्ते झड़ने के बाद निकलते हैं। तबूबिया के दरख्तों पर फूल फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च तक खिलते हैं। ये जो आप पीछे फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये एक तबूबिया ट्री है, ये एक इम्पोर्टेड ट्री है। इस पे पिंक और येलो कलर के जो है ना फ्लावर्स आते हैं। ये सारे जो है ना पिंक कलर के लगे हुए हैं और ये हर साल जो स्प्रिंग का सीज़न जब आता है तो ये अपने सारे लीव जो हैं, इनकी स्पेशलिटी है कि सारे लीव गिरा के और मुकम्मल तौर पे फूलों से ये है ना ढक जाते हैं ये सारे। ग्रीन बेल्ट्स पर खिले गुलाबी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी कहते हैं कि तबूबिया के खूबसूरत फूल देखकर मूड खुशगवार हो गया। तबूबिया के दरख्त जो से PHA मुल्तान ने लगाए हैं इस रोड के ऊपर, मौसम बहार की आमद है। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और PHA को चाहिए कि ऐसे ही इक़दामात और भी करे। और माशाल्लाह इसमें ये बाहर के मौसम में गुलाबी फूल इतना प्यारा लगा हुआ है माशाल्लाह कि लोग यहाँ पे रुक रुक कर गाड़ी वाले अपनी अपनी मूवी बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं और माशाल्लाह ये मुल्तान की खूबसूरती के लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में तबूबिया के दरख्त लगाए गए हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आ गई बहार, हर सू फूलों की है महकार। मौसम बहार की आमद से हर तरफ रौनक और चहल पहल शुरू हो गई है। दायरा दीन पनाह में मौसम बहार के रंग छाने लगे। बहार आते ही रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। शहरी कहते हैं कि हर किस्म के फूल अपनी खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर रहे हैं। मौसम बहार का इंसान से गहरा ताल्लुक समझा जाता है। मौसम बहार कायनात का एक अनमोल तोहफा है। इस मौसम में हुस्न व जमाल हकीकी मायनों में बेनकाब होता है। खालिक कायनात का हुस्न फूलों में नजर आता है। छोटी छोटी टहनियों पर लगे फूल ताजगी और राहत का एहसास दिला रहे हैं। जमीन पर बिखरे फूलों की कोसे कज़ा आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। मैं यहाँ पे फूल लेने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बहार का मौसम आ गया है तो फूल भी खिल उठे हैं। इसी तरह से हर साल मैं यहाँ से फ्लावर्स के पौधे जो हैं वो लेकर जाता हूँ और अपने घर के साथ लगाते हैं। वो खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करते हैं। नर्सरी लगाए हुए हैं, यहाँ लोग आते हैं मौसम बहार में, हर साल फूल ले जाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। मौसम बहार में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। बहार के मौसम में परिंदे चहचहा रहे हैं। इस मौसम में खूबसूरत फूलों को देखने वाले भी फितरत की रंगीनियों में खो जाते हैं। बहार में फूल खिलने और दरख्तों पर नई कोंपलें निकलने से हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं जो इंसानी सेहत पर मस्बत असर डाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, रोही, दायरा दीन पनाह।